देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। इस मौके पर दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आईपी लॉ और मैनेजमेंट में संयुक्त मास्टर्स LLM के पहले बैच के इंडक्शन प्रोग्राम में भाग लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण बौद्धिक संपदा की सोने की खान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वेद इस बौद्धिक खजाने के प्रमुख उदाहरण हैं। Intellectual property law and management are pivotal to innovation, economic growth, and the protection of creative endeavors, as well as safeguarding our ancient knowledge and research. The latter one is more important. In our globalized era, IP has become a cornerstone of international trade. For India, that is home to 1/6 of humanity. Strong IP protection is crucial for attracting foreign investment and fostering technology transfer. India has made, young boys and girls, significant strides in strengthening its IP regime. Our legislative framework, I am in some capacity associated with it, has been progressively aligned with international standards, ensuring robust protection. We have carefully crafted a regime that complies with obligations under the World Trade Organization's agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, for short, and EGNES, TRIPS, and other bilateral and regional agreements. I beseech all of you to have by your bedside the Vedas in physical form. And trust me, you will find solution to everything and you will get enriched day by day. India's thriving innovation ecosystem has helped the country buck the global trend of diminished IP activity and show rises in patents, trademark designs, and geographical indicators. A concept too dear to us. Go to any district of the country, you will find geographical indicators. Go to any part of Bharat, you will find cuisine which is so specific, which can get global. You can do it. Each one of you has the potential by your training, particularly in IP, intellectual property aspects. Let me remind you the wisdom from our ancient Vedas, the Rig Veda. Let noble thoughts, I'm quoting, let noble thoughts come to us from every side, unquote. Something similar was said by Bismarck, the German gentleman. Much later, let the winds of change blow from every direction. This is there in our Rig Veda thousands of years ago. Look at the form of intellectual property we have not been able to monetize. People often quote Bismarck, whereas we should be quoting the most authentic source. This verse encapsulates the essence of intellectual property, the free flow of ideas and knowledge for the betterment of society. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से आग्रह किया कि वो स्वार्थ को देश के हित से ऊपर रखने वाली ताकतों को किनारे लगाएं और उन्हें निष्प्रभावी करें। उन्होंने युवाओं से कई अन्य क्षेत्रों में भी अवसरों की तलाश करने का आह्वान किया। Friends, a few months back I had the occasion out of pain to reflect to young minds for your welfare. Now I find soothing that extravaganza of coaching centers advertisements.
all over the newspaper, page 1, page 2, page 3. Putting boys and girls who made it, and same faces being used by multiple organizations. Advertisement, look at the extravaganza, the cost, every penny of that advertisement has come from those young boys and girls who are in pursuit of securing a future for themselves. Time has come. Let us be out of the silo of seductive civil service jobs. No longer. Why should we in that silo? We know the opportunities are limited. We have to look away and find there are enormous vistas of opportunities, far more lucrative, that enable you to contribute massively. And this can happen in disruptive technologies, it can happen in space, it can happen in the ocean blue economy. You just have to look around and you'll find it was rightly been said by the International Monetary Fund, India is a favorite destination of investment and opportunity. Here I seek your assistance and I beseech you. Our youth must equally rebuff and neutralize forces that keep partisan or self-interest above that of our nation. We cannot allow it. It happens, it is at the cost of our rise. You are law students, I will leave two thoughts with you. One, scratch your brains and find out. Jurisdiction of institution is defined by the Indian Constitution, be it legislature, be it executive, be it judiciary. Jurisdiction of courts is decided. Look around the globe, look the Supreme Court in the US, the highest court in the UK or other formats. Has there been suo motu cognizance even once? Has a remedy been created beyond what is provided in the Constitution? Constitution provides original jurisdiction, appellate jurisdiction. It provides review also. But we have curative. If you do not focus on these nuances, I wonder who shall do it. Think about it. I got extremely worried when a person holding constitutional position just last week declared in a well-publicized media, I would say, campaign, beseeching Supreme Court to suo motu invoke jurisdiction, to give wings to a narrative aimed at destroying our economy. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत दौरे पर आए मॉरिशस के नेशनल असेंबली के स्पीकर एंड्रियन चार्ल्स ड्रुवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। रक्षा, समुद्री सहयोग समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी बातचीत हुई। और आप जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आप शुरू से जुड़े हुए हो, निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्तर पर IPO और CP जैसी संस्थाओं से भी लाभ आप पाया, अनुभव का लाभ मिले। आपने कानून की पढ़ाई के रूप में किसी भी संसद में कानून और लॉ का बड़ा महत्व रहता है और मुझे आशा है कि आपके इस अनुभव का लाभ मॉरिशस को मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट के कई संगठनों को मिलेगा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच के संबंधों का पुराना इतिहास है। सांस्कृतिक समानता नागरिकों के मध्य सशक्त संबंधों का आधार है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में डिजिटलीकरण और संसद टीवी की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। मॉरिशस के संबंध बहुत पुराने हैं और ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों में महान कई समानताएं, साझे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, भाषा भी हमें जोड़ती है, हमारी संस्कृति भी जोड़ती है और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी हमारा है और बड़ी संख्या के अंदर भारत मूल के लोग मॉरिशस में रहते हैं। इससे निश्चित रूप से
हमारे संबंध और मजबूत हैं और नजदीक के हैं और पड़ोसी देशों के कारण भी हमारे संबंध और मजबूत हैं। एक्सेलेंसी भारत में बड़ी संख्या में लोग मॉरिशस में पर्यटन की दृष्टि से जा रहे हैं। कोविड के पहले बड़ी संख्या में देखते कोविड में कुछ कमी आई, लेकिन वापस बात लगातार भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। संसद टीवी परिसर में आज संसदीय चैनल संसद टीवी और लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के बीच एक समझौता हुआ। दोनों ही संस्थाएं पहले से ही अलग अलग मौकों पर मिलकर काम करती रही हैं। आज के समझौते में इस आपसी तालमेल को एक औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। अब दोनों ही संस्थाओं के बीच और बेहतर समन्वय हो सकेगा। आज एक MOU साइन हुआ है, हिस्टोरिकल है, बिटवीन संसद टीवी एंड प्रसार भारती, और इसमें हम लोग का कोलैबोरेशन जो पहले से हम लोग का बहुत कोऑपरेशन कोलैबोरेशन रहा है, बट इसको आज हम लोग एक फॉर्मल मैकेनिज़्म दिए हैं और एक फॉर्मल MOU साइन हुआ है। इस MOU का एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा ये भी है कि इसका हम लोग मॉनिटरिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम लोग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें संसद टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, कोलैबोरेशन इन वेरियस अदर शेयरिंग ऑफ फीड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इसका मुख्य पोर्शंस हैं। संसद टीवी भारतीय संसद की संस्था है और संसद में होने वाली कार्यवाहियाँ और उससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर में जानकारियाँ जनता तक पहुँचाने का एक काम संसद टीवी द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा पारित किए गए कानून के तहत जो गठित हमारी संस्था है प्रसार भारती, वो लोक सेवा प्रसारक के रूप में लोगों को देश दुनिया की खबरें देना और साथ में उनको जानकारी देना, उनको एंटरटेन करना, ये दायित्व हमको मिला है। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों संस्थाओं के जो कार्यक्षेत्र हैं उसमें कुछ ओवरलैप था और इस ओवरलैप को हम लोग मिलजुल करके काम करते ही थे, लेकिन CEO संसद टीवी की लीडरशिप में हम लोग पिछले कई दिन से ये MOU का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे और जैसा अभी CEO साहब ने बताया कि इसमें हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं वो आपस में शेयर करेंगे। जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। जो हमारे अपने सेट टॉप बॉक्स के, हमारे OTT के, डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे संसद टीवी जो है प्रसारित होगा ताकि और अधिक लोगों तक वो नए स्वरूप में पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ का भी उपयोग संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम दोनों अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारियों को लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे और दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफ़ी लाभ होगा। संसद भवन परिसर में समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान संसद टीवी के CEO, प्रसार भारती के CEO, संसद टीवी की एडिशनल CEO, संसद टीवी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, DG दूरदर्शन और DG दूरदर्शन न्यूज के साथ साथ संसद टीवी और प्रसार भारती के कई अधिकारी मौजूद थे। दोनों संस्थाओं के बीच हुए इस समझौते का लाभ देश भर के दर्शकों को मिलेगा।